Hi, class 10 CBSE. How are you doing? I hope everybody is fine and everybody is doing well. And everybody might have done preparation well of the English part. So I'm quite sure that you would be doing good at the English exam, but there are certain things which you need to take care in grammatical section. So in this video, I'm going to discuss those areas where you may get some extra information about those areas so that you need to take care while solving the grammatical portion. Alright, so understand those who have not that gone through the classes thoroughly, this video can entirely help you out to understand that what sort of questions can come and how you need to attempt those questions. Alright, okay, so let's discuss. So there will be 10 objective type questions, and you need to apply your grammatical understanding of the concepts. That could be your modals, that could be your tenses, that could be your prepositions, articles, and other things which we have discussed in the class. So these things can come, and you have to be very careful because these are not asked directly, but these are asked indirectly, right? So let's take the example of this sentence first. Like, report the dialogue between the grandmother and children by completing the sentence. Okay. What you need to do? You need to report, understand clearly. And if in that report, most of the questions, I think 2 or 3 questions will definitely come from, like, you have to report the dialogue, right? Two persons are talking, and you need to report on that. Situation could also be there, and you also need to report on that. So report is one thing that which you have to, which will come in the examination part. By which way your grammar also will be checked. So look at this sentence. Children, can we go to the park? Grandmother, yes, but don't play on the grass, boys. ठीक है, अब देखो ये 2 डायलॉग हैं आपको these both dialogues are being given to you, and now you need to report this thing, like giving permission to go to the park. Grandmother wanted the children and told them, warned the children, sorry. Grandmother warned the children and told them, क्या बोला, right? क्या बोला उनको? Not to play on the grass. तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना आपने कि जब भी आप इस तरह से आपको आएगा तो व्हाट यू नीड टू डू दैट, ओके, आपको ये ध्यान रखना है कि आप रिपोर्ट कर रहे हैं, तो रिपोर्ट कर रहे हैं तो वही चीज नहीं आनी चाहिए, थोड़ा सा एक इनडायरेक्ट वे में बात हो जाएगी, ठीक है. लाइक गिविंग परमिशन टू गो टू द पार्क, grandmother warned the children and told them not to play on the grass. क्लियर? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको, and you need to be very careful while solving this thing. Okay, next question is there, fill in the blanks. ग्रामर में देखो क्या आएगा आपका. First thing you will get dialogue, report on dialogue or situation. Second thing, fill in the blanks. In blanks problem, your mostly preposition, article, phrasal verb, and these things will be checked, right? That do you have understanding of these things or not? So that will be checked through these things only. And then the third part is your, what is that? Just identification of errors. Yeah, that is subject verb concord, which we have studied in the class. Yeah, subject verb agreement we also call it. So when you have these 3 areas only, and these 3 areas, the questions from these 3 areas the question will come. Clear? Alright, so देखिए अब now 4th question, fill in the blanks by choosing the correct option to complete the following. So let's see that what is there. Let me make it zoom. हाँ, आप इस साइड आ जाइए सर. ओके, हाँ देखो यहाँ पे क्या है, the concerts been, यहाँ पे has been है ये. Alright, the concerts has been या concerts been blank until next month because the singers got a throat infection, right? So what should come here? Put off, put down, put aside, or will be put away. ठीक है, देखो ये क्या है, ये आपका फ्रेजल वर्ब का कंसेप्ट है. मैंने आपको बोला ना, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा, आपका फ्रेजल वर्ब चेक की जाएगी, मोडाल चेक किए जाएंगे, आपके प्रेपोजिशन भी चेक करी जा सकती है, आर्टिकल्स भी चेक करे जा सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही जूनियर क्लासेस का पार्ट हो गया. लेकिन here phrasal verb and modals are key area.
वेयर यू नीड टू फोकस। अगर किसी के क्लियर नहीं है, मोडाल्स का वीडियो पड़ा है यूट्यूब में, देख लेना। प्रेपोजिशन का भी है बट वो नहीं आएगा आपको, इतना रहने देना, पर मोडाल्स का पड़ा हुआ है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब का मैंने नहीं बनाया है, लेकिन लेट्स क्लियर दिस थिंग फ्रॉम हियर, राइट। देखो पुट ऑफ फ्रेजल वर्ब क्या होती है। फ्रेजल वर्ब इज दैट व्हेन देयर विल बी अ प्रेपोजिशन विद अ वर्ब, ठीक है। जब आपकी क्या होगी, जैसे मान लीजिए देखो पुट आपका वर्ब है, ठीक है, ऑफ आपकी प्रेपोजिशन है। जब आपकी वर्ब जो है एक आपकी उसके साथ आएगी, प्रेपोजिशन के साथ आएगी, तो आपकी फ्रेजल वर्ब बन जाएगी। इनका मतलब अलग हो जाता है फिर। जैसे मेन सेम वर्ब है, पुट है, आगे ऑफ लग गया, पुट के आगे ऑफ लग गया, पुट डाउन हो गया, पुट असाइड हो गया, पुट अवे हो गया, पुट ऑन होता है, पुट अप होता है। तो वहां पे जब ये आगे वर्ड लग जाते हैं ना, तो इनसे जो है पूरा सेंटेंस का जो मतलब है वो चेंज हो जाता है। वर्ड का मीनिंग ही, वो जो फ्रेजल वर्ब है वो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, द कंसर्ट्स बीन ब्लैंक अंटिल नेक्स्ट मंथ बिकॉज द सिंगर्स गॉट अ थ्रोट इन्फेक्शन, इट विल बी पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन। क्लियर, इस चीज का ध्यान रखना आपने। तो पोस्टपोन किया गया, राइट। पुट डाउन नहीं होगा, पुट डाउन हो गया टू इंसल्ट समवन, ठीक है। पुट डाउन इंसल्ट होता है, पुट असाइड होता है तो सेव करना, लाइक ही वाज पुटिंग असाइड सम ऑफ हिज अर्निंग टू गेट इनटू गुड कोचिंग स्टफ, राइट। तो वो सेव कर रहा है मनी इसलिए ताकि वो कोचिंग ले सके। क्लियर, राइट। तो नेक्स्ट पे आइए, आप देखिए अब आपका ये मॉडल है। देखिए ये मॉडल की है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस एंड टू कंप्लीट द स्लोगन फॉर द अर्थ। प्लास्टिक ब्लैंक बी फैंटास्टिक बट ग्रीन इज क्लीन। प्लास्टिक कैन, मे, मस्ट और विल। देखो मस्ट और विल तो होंगी नहीं, है ना। अब आपके पास ऑप्शन बचता है कैन और मे। तो कैन और मे, कैन शोज कैपेसिटी, मे शोज पॉसिबिलिटी, राइट। तो कैपेसिटी तो हम प्लास्टिक की शो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम क्या कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक मे बी फैंटास्टिक बट ग्रीन इज क्लीन। तो देखो गाइस क्या हो रहा है यहाँ पे, आपका जो आपके ये कॉन्सेप्ट हैं, they are not being asked directly but they been made to in such a way so that you may get confused, right। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है आपका इसका सेंटेंस करेक्शन का ही है। लेट्स फोकस ऑन दिस वन। थोड़ा जूम कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट सर, प्लीज मूव फ्रॉम हेयर। अब देखिए 6 क्वेश्चंस है। आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंसेस फ्रॉम। एरर, जो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर है, इसमें ज्यादातर मिस्टेक जो है आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की ही आ रही हैं, जो मैंने चेक किया है, ठीक है। फिर भी आप प्रैक्टिस कर लेना काफी सारे सेक्शंस, तो आपका अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे कैसे करना है इसको। आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम ए स्कूल मैगजीन रिपोर्ट एंड सप्लाई द करेक्शन। अब जब बच्चा कंफ्यूज कैसे होता है कि ये पता नहीं क्या है, स्कूल मैगजीन का क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली सेंटेंस को पढ़ना है, हमें देखना है उसमें कि प्रॉपर ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स, जब भी इतना ज्यादा कंसेप्ट कोई जाने की जरूरत नहीं है। मेनली सिंपल क्या है, जब भी आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर वाला पार्ट होगा तो वहां पे जरूर देखना, आप वहां पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली मिस्टेक होगी, राइट। यहाँ पे देखिए some students tend to इधर ही रहो आप। Some student tends to experience episode of anxiety and sleeplessness and even nervous breakdowns, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, राइट। ये सेंटेंस पढ़ लिया आपने। नाउ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आगे वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर ही होनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आगे वर्ब भी आपकी क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। राइट नाउ सी सम स्टूडेंट्स, ठीक है। सम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, टेंस नहीं आएगा वहां पे, तो वहां पे क्या आपका टेंड आएगा। सम स्टूडेंट्स टेंड, बिकॉज ये प्लूरल में है तो आपकी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, राइट। इफ वी टॉक अबाउट प्रेजेंट सिंपल, राइट। तो सम लाइक शी लाइक्स चॉकलेट, तो देन इट इज सिंगुलर, बट व्हेन इट इज प्लूरल देन फर्स्ट फॉर्म शुड कम, ठीक है। मैंने आपको टेबल बताया था ना कि फर्स्ट सिंगुलर क्या क्या है, प्लूरल क्या है। सिंगुलर क्या है, इज। सिंगुलर क्या है, वॉज। सिंगुलर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS, वो सिंगुलर है। प्लूरल क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लूरल क्या है आपका, वॉज, सॉरी वर इन द पास्ट।
प्लूरल क्या है, आर इन द प्रेजेंट, प्लूरल क्या है, हैव, और सिंगुलर में क्या था, हैज, और उसी तरह से प्लूरल में क्या आएगा, डू, और इस तरह से सिंगुलर में क्या है, डज। उस टेबल को ध्यान से रखो, और अगर नहीं बनाया तो इस वीडियो को सुन के बना देना। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, सम स्टूडेंट्स टेंड टू एक्सपीरियंस, ठीक है, टेंस नहीं होगा। देखो आराम से पढ़ना है आपने, और ध्यान रखना है कि जब भी आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर का पार्ट आएगा तो उसमें इसी तरह की ही मिस्टेक आएगी। तो फिर आपका जो ये फॉर्मेट दिया है आपने ऐसे बनाना है, ठीक है। एरर लिखनी है और आपने करेक्शन लिखना है। एरर लिखना है जैसे टेंस, TENDS, और आपने करेक्शन में लिखना है TEND, और अच्छे से बनाना है, हाथ से नहीं बनाना है टेबल को, प्लीज बॉयज, बॉयज को मैं स्पेशली बोलता हूँ, राइट, ध्यान ही नहीं देते आप लोग यार, ठीक है। तो व्हाट यू नीड टू डू दैट, ओके, आपको एक बॉक्स वाले फॉर्मेट में बनाना है इसको, टेंस लिखना है और यहाँ पे 10 लिखना है, क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये भी देखो क्या है, ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स में सिंपल वर्ब की मिस्टेक है, राइट, बट डायरेक्ट नहीं है, आपको सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, ओनली देन यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज। तो 7 क्वेश्चंस, आई एम मेकिंग इट जूम, ठीक है। It seems that somebody blank to my father before the meeting, complaining that I blank late for school 4 times last week. ठीक है, किसी ने मेरे फादर को कंप्लेंट किया था कि मैं जो हूँ काफी टाइम से, मैं 4 टाइम से जो है स्कूल में लेट आया था, ठीक है, राइट। तो अब देखिए इसके ऑप्शन क्या आएंगे। सिंपल टेंसेस का मिस्टेक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ब आ जाएगी, उसको कैसे कॉम्प्लिकेट किया जाएगा वो थोड़ा सा आपको देखना है, और इस तरह की अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, आई थिंक 10 क्वेश्चन यहाँ पे है और 30-40 क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो आपका काफी एक आइडिया लग जाएगा आपको कि अगर 10 में से आपके 7 और 8 करेक्ट होने चाहिए, ठीक है, वो तभी होंगे अगर आप एटलीस्ट 30 से 30 to 40 इफ यू आर एबल टू डू देन यू वुड गेट बेटर आइडिया, ठीक है, बट करने सॉल्व पूरे हैं, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इट सीम्स दैट समबडी हैड रिटन, ठीक है, क्योंकि पिछली बात है ये, तो ये राइट्स, ये तो कैंसिल, ये राइट्स नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, ठीक है, राइट। रोट, समबडी रोट टू माई फादर बिफोर द मीटिंग कंप्लेनिंग, बिकॉज इट इज, आई टोल्ड यू दैट, ओके, हैड के साथ थर्ड फॉर्म कब आता है, जब आप बात कर रहे हैं डीपर पास्ट की, और सम टाइम you are, it is used in recent past as well when there are two situation, when two situation occurred at the same point of time, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि ऐसा हुआ था फिर ऐसा हुआ, ठीक है, राइट। तो it's had written, so somebody had written to my father before the meeting complaining that I was late for school 4 times last week, ठीक है, राइट। तो ये सिंपल था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अगेन देखिए वही डायलॉग राइटिंग का आ गया, ठीक है, डायलॉग राइटिंग नहीं है, रिपोर्ट है, ठीक है। डायलॉग राइटिंग आप आई थिंक एक कौन सी क्लास में आता है वो, जूनियर क्लासेस में है कहीं पे, वो डायलॉग राइटिंग, वहां पे आपको डायलॉग लिखने हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है डायलॉग को, इस चीज का ध्यान रखना आपने। मतलब आप दूर से क्या कर रहे हैं, आप फ्रॉम ए डिस्टेंस यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग दैट व्हाट आर दे डूइंग एंड देन यू आर रिपोर्टिंग ऑन दैट, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो उसी तरह से देखो, लिज है और माइक है, 2 पर्सन है। लिज क्या बोल रहा है, हे माइक गुड टू सी यू, और माइक क्या बोल रहा है, जस्ट अ मिनट, माइक क्या बोल रहा है, व्हाट आर यू डूइंग हियर लिज, ठीक है। अब देखो, अब उसने रिपोर्ट आधा तो कर दिया है, लेकिन हाफ ऑफ द पार्ट यू आर सपोज टू डू, हाफ क्या, थोड़ा सा पार्ट आपको करना है, उसका आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। लिज greeted Mike when they met accidentally and said it was good to see him. Mike surprisingly asked Liz, क्या पूछा उसने, Mike surprisingly asked Liz what she was doing there, here नहीं होगा, there होगा, मतलब यही है, what she was doing there, right। अब देखो ये नरेशन है एक्चुअली, राइट, नरेशन है। अब ऐसा बोलेंगे सर ने हमने नरेशन पढ़े हैं, वो डायरेक्ट तो आ नहीं रही, इसी तरह से पूछा जा रहा है, ठीक है, आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच, राइट। सो दैट इज जस्ट, वो इस तरह से आपको क्या है कि आपको एक एडवांस वर्जन बना के क्या किया गया है, सिंपल डाला गया है, बट यही है कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस इसके ऊपर ज्यादा करनी पड़ेगी, तब आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो लिज ग्रीटेड माइक व्हेन दे मेट एक्सीडेंटली एंड सेड it was good to see him. Mike surprisingly asked Liz what was she doing, right,
व्हाट शी वाज डूइंग, सॉरी व्हाट शी वाज डूइंग। हाँ, इसमें भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए। नरेशन में आपको पता है जब आस्क लग गया तो आपका इनडायरेक्ट में जा रहा है, तो इनडायरेक्ट में आपकी स्टेटमेंट बननी चाहिए, ना कि अगेन क्वेश्चन बनना चाहिए। तो व्हाट शी वॉज डूइंग, नॉट व्हाट वॉज शी डूइंग। क्लियर? आगे बढ़ते हैं फटाफट। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ अ लेटर। सब्जेक्ट, नीड फॉर, ओके या, तो इसमें एक सेंस लगानी है बस, सिंपल, और कुछ नहीं है इसमें। नीड फॉर एक से जेरेंट का कंसेप्ट है, तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको, राइट, बट जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। नीड फॉर ब्लैंक हेल्दी ईटिंग रूटीन डियर मैडम दिस इज विद रेफरेंस टू। तो मतलब ये मैडम के लिए बोला गया है, तो आपको सिंपली क्या करना है यहाँ पे, नीड फॉर प्रमोटिंग। मोस्टली जेरेंट क्या होती है, फॉर के साथ आती है। जेरेंट क्या होती है, जेरेंट आपकी मोस्टली आईएनजी फॉर्म होती है। कोई भी वर्ब जब आईएनजी में कन्वर्ट हो जाती है एंड दैट वर्ड हैज कैपेसिटी टू बिकम अ नाउन एंड एज वेल एज वर्ब, सो दैट बिकम्स अ जेरेंट फॉर्म। तो आईएनजी मतलब फॉर के साथ आपका आईएनजी मैक्सिमम टाइम आता है, लाइक नीड फॉर प्रमोटिंग हेल्दी ईटिंग रूटीन। ठीक है, राइट। आगे चलें। देखो वही चीजें हैं, मतलब नरेशन ही है या कुछ इस तरह से है, लेकिन टेंथ देखिए ये भी नरेशन का एक पार्ट है। द मेयर ऑफ द सिटी विजिटेड आवर लोकेलिटी वेयर द वेयर द हाईरेट रेजिडेंट्स पोस्ड अ फ्यू क्वेश्चंस टू हिम, रिपोर्ट रेजिडेंट्स क्वेरी। जहाँ पे रिपोर्ट आ रहा है, सिचुएशन दे रहे हैं आपको, उसका मतलब देख समझना, मेरी बात ध्यान से सुनना। वहां पे क्या है, वहां पे आपका नरेशन है, एंड बी वेरी क्लेवर। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा आपको सेंटेंस जो है दोबारा लिखना पड़ेगा। जैसे रेजिडेंट्स ने क्या क्वेश्चन पूछा उनसे, आर यू गोइंग टू हैव आवर रोड्स रिपेयर्ड मेयर, आर यू गोइंग टू हैव आवर रोड्स रिपेयर्ड मेयर। ठीक है, तो इसका क्या हुआ देखो, लेट्स जस्ट अ मिनट। ऐसे एक्चुअली क्या है, डायरेक्ट क्या है, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, जैसे उसमें डायरेक्टली नहीं पूछा गया, ये आपको थोड़ा क्या करना, आपको रिपोर्ट करना है। सो व्हाट यू नीड टू डू दैट, द रेजिडेंट्स आस्क्ड, just a minute, the resident asked the mayor, the resident asked the mayor if, ठीक है, देखो अब क्वेश्चन है, आर यू गोइंग टू हैव आवर रोड्स रिपेयर्ड मेयर। ठीक है, राइट, जस्ट अ मिनट। हाँ, देखो ये क्या है, अब देखो नरेशन में क्या होता है, जब इजेमार होता है तब हम उसको कन्वर्ट किस में करते हैं, वॉज ओवर में। ठीक है, रूल्स आपको बताए हैं, टेबल आपके साथ, टेबल्स मैंने आपको दोनों दिए हैं, वॉइस का टेबल भी दिया है, नरेशन का टेबल भी दिया है, लेकिन वो जो है डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा है। आप क्वेश्चन पढ़ के आप ना परेशान हो जाओगे कि ये क्या आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो आर यू गोइंग टू, ठीक है, तो क्या बनेगा, द रेजिडेंट आस्क्ड द मेयर इफ ही वॉज। ठीक है, इफ ही वॉज, अब नरेशन में होता है कि हम इनडायरेक्ट बात करते हैं। ठीक है, इफ ही वॉज गोइंग टू, अब आर किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें क्या बोलते हैं उसको, वॉज में कन्वर्ट हो गया। इफ ही वॉज गोइंग टू हैव देयर रोड्स रिपेयर्ड, हैव आर नहीं आएगा, हैव देयर रोड्स रिपेयर्ड, बस गल खत्म, राइट, क्लियर। तो कुछ नहीं है, बट मेन चीज क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट को समझना है, रिपोर्ट प्रॉपरली करना है बस। द रेजिडेंट्स, सो व्हाट विल इट बी, इट विल बी द रेजिडेंट्स, the resident asked, the resident asked the mayor if he was, question नहीं बनना चाहिए again, if he was going to have their roads repaired or not। इसमें मेन वर्ब आपकी आर है, हैव नहीं है, ये गोइंग टू हैव है। ठीक है, ये पूरा आपका फ्रेज है। ठीक है, तो ये इसको आपने नहीं मानना कि हैव को हैड में कन्वर्ट कर दो, नहीं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको मेन वर्ब जो आपकी यहाँ पे आर है, इसको आपने वर्ब में कन्वर्ट करना है, वॉज या वर्ब में कन्वर्ट होगा ये। तो यहाँ पे सिंगुलर है तो ऑब्वियसली थर्ड पर्सन सिंगुलर तो वॉज में जाएगा ये। ठीक है, राइट। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, तो इस तरह से पूछा जा सकता है। सो प्लीज 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 जो टेबल करवाए हैं उनके ऊपर ध्यान से जाइए, और ये जो ऊपर वाला ये वाला जो पार्ट था 7 क्वेश्चंस, इसके मैंने आपको जो टेंसेस का चार्ट बनाया था, राइट, और बड़े सिंपल वे में बनाया था, ऑल द 12 टेंसेस ऑन अ 1 पेज। ठीक है, तो उसको भी एक बार देख लो ताकि आप मिस्टेक ना करें। डायरेक्ट नहीं पूछेगा कोई भी आपसे कि व्हाट इज टेंस, व्हाट इज दिस थिंग, लेकिन इस तरह से आपको सिचुएशन दी जाएगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट विच यू हैव कवर्ड इन द क्लास।
ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शंस फॉर द फॉलोइंग। अगेन ये भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर ऐसी है कि मतलब क्लास 10 तक आपका ग्रामर ऐसा होना चाहिए कि कहीं भी आपको एरर दिखे तो आपको वो पॉइंट आउट करनी आनी चाहिए कि क्या एरर है। तो सीबीएसई का जो असेसमेंट है दैट इज दैट ओके, दैट नीड्स टू मेक यू अंडरस्टैंडेबल इन ग्रामेटिकल पार्ट, राइट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे World Environment Day, Nagar 1 are being established for the objective to make the make the cities pollution free। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक पता क्या, नगर 1 आर बीइंग एस्टेब्लिश्ड फॉर द ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, विद द ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पे आपका ये चीज आएगी। तो आपने क्या करना है, एरर पार्ट में आपने फॉर लिखना है और करेक्शन में आपने विद लिखना है। ठीक है, राइट। या फिर फॉर्मेट आपको जो दिया होता है आपको उसी के अकॉर्डिंग करना होता है। अब देखिए आपका नेक्स्ट पार्ट आते हैं अभी यहाँ पे। अभी ये क्या है, हाँ अब ये देखो ये डायरेक्ट है, यहाँ पे तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है आपको। यू नीड नॉट टू गेट नर्वस नाउ हियर। ही सेड टू हिज सर्वेंट, व्हाई आर यू सो लेजी टुडे? But again, in class 10th, you will not get simple sentence to convert. You will get obviously the interrogative sentences to convert. So please go through the rules of the interrogative part and try practicing some sentences from interrogative part, so that okay, if there is any questions, so that you can actually attempt that questions with good success rate, right? तो उसके लिए आपको क्या है, उसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी टाइम है थोड़े दिनों का, तो प्लीज कर लो, है ना। ओके, तो ये देखिए आप यहाँ पे क्या है, ही सेड टू हिज सर्वेंट, व्हाई आर यू सो लेजी टुडे? देखो जब भी डायरेक्ट आ रहा है तो हमने क्या करना है, सेड टू को हम आस्क में चेंज करते हैं। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट, ठीक है, दैट लगाते थे हम, लेकिन अगर ऑप्शन में दैट नहीं दिया है दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, राइट। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट व्हाई क्वेश्चन वर्ड वैसे ही रहता है। इज एम आर है तो किस में कन्वर्ट होगा, वॉज वर्ड में कन्वर्ट होगा। वाई आर यू नहीं होगा तो अब क्या होगा, वाई वॉज ही नहीं आएगा, वो प्रश्न बनेगा, लेकिन नरेशन में आपका क्या बननी चाहिए, स्टेटमेंट ही बननी चाहिए। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट व्हाई ही वॉज सो लेजी टुडे, किस में कन्वर्ट होता है, दैट डे में। व्हाई ही वॉज सो लेजी ऑन दैट डे। क्लियर। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो जब भी आप ग्रामेटिकल पोर्शन करोगे तो आपने ऑप्शन तो लिखनी है, रीडिंग के सेक्शन में भी ऐसा ही है। डू नॉट राइट सिंपली ए बी सी, ठीक है, जो ऑप्शन के आगे लिखा हुआ है वो भी लिखना है। आप 10th क्लास में यू आर नॉट गिविंग यू नो दैट क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर नहीं है आपका, ये लैंग्वेज का पेपर है। तो ये थोड़ा एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में जब भी आप ऑप्शन लिख रहे हो, जो आपको आंसर लग रहा है उसके आगे उस आंसर को भी लिखो, बोथ ग्रामेटिकल पार्ट एज वेल एज रीडिंग पार्ट। तो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, अगेन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर हो गया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर अगेन देखिए इसमें क्या, critics have time and again points out that our education system tends to judge widely different students on single line parameter which is unfair। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, क्रिटिक्स कितने हैं, बहुत ज्यादा है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मिस्टेक अगेन है। तो क्रिटिक्स हैव टाइम एंड अगेन पॉइंट्स नहीं आएगा, फिर पॉइंट आएगा। ठीक है, अगेन अगर एक क्रिटिक होता, अगर एक पर्सन होता वो क्रिटिसाइज कर रहा है तो देन पॉइंट्स, लेकिन यहाँ पे क्रिटिक्स क्या है, अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो वो क्या है आपके, क्या कर रहे हैं, वो सारे पॉइंट कर रहे हैं, पॉइंट्स नहीं कर रहे हैं। तो वहां यहाँ पे आपका तो एरर वाला जो सेक्शन है इसमें आपने पॉइंट्स लिखना है और करेक्शन में आपने पॉइंट लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। अगेन ये मॉडल्स की मिस्टेक है, शुड, आउट टू, मस्ट एंड विल। अ गुड टीचर ब्लैंक बी अलाइक एज मच एज पॉसिबल अ बैड स्टूडेंट, राइट। तो यहाँ पे क्या है आपका, कौन सा मॉडल आएगा, यहाँ पे आपका मॉडल आएगा मस्ट। अ गुड टीचर मस्ट बी, मतलब बहुत जरूरी है, नेसेसिटी है। अ गुड टीचर मस्ट बी अलाइक एज मच एज पॉसिबल अ बैड स्टूडेंट, राइट। तो ये था गाइज आपका ग्रामेटिकल पोर्शन। थोड़ा वीडियो लेंथी बन गया, लेकिन
आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट था, सो आई फील दैट ओके आई शुड अपलोड एंड टू मेक यू क्लियर, राइट। बाकी आपके पास बुक्स पड़ी होंगी तो प्लीज वहां से इन एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस कर ले एंड इट विल बी गुड फॉर यू एंड और आप इजीली ग्रामेटिकल क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, 11 आएंगे, आपको 10 करने हैं, तो 10 में से अगर आप 7 भी लेके आते हो तो आई विल बी वेरी हैप्पी, राइट। ओके, बट एटलीस्ट ट्राई प्रैक्टिसिंग मोर सेंटेंसेस लाइक दिस एंड जो आपके सैंपल पेपर पड़े होंगे आपके पास कुछ, तो उसमें से 2-3 और कर लो, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपके जो इसके ऊपर जो कमांड है वो अच्छे से हो जाएगा, क्लियर, राइट। एंड आई वाज थिंकिंग टू अपलोड इट अर्लियर बट थोड़ा टाइम नहीं है मेरे पास एंड आई बिन यू नो दैट गोइंग हेयर एंड देयर, ठीक है, थोड़ा प्लेसेस पे जा रहा हूँ, मतलब घूम रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, तो दैट इज व्हाट। So please do these things and let me know if you have any doubt and let me know. Clear? Okay. And thank you so much. और writing वाला part क्या है? Reading का तो देखो, reading का is different thing and but my target was to make you understand in this area. All right. Well, thank you so much. Have a nice day and do well preparations and best of luck for your exam. If I find any time, if I find time, so I may upload some another video. So, but right now this is enough for you, I guess. All right. Thank you so much, guys. Thank you. Bye.